مقتول جوڑا شادی شدہ نہیں تھا، خاتون 5 بچوں کی ماں تھی، فریقین FIR کے لیے تیار نہیں تھے۔ حکومت واقعے کی شفاف تحقیقات کرا رہی ہے۔ قبائلی سردار سمیت 11 ملزمان کو گرفتار کر لیا، دیگر کی گرفتاری کے لیے چھاپے مارے جا رہے ہیں۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی کہتے ہیں واقعے کے بعد متعلقہ GSP کو معطل کر دیا ہے، واقعے کو بطور ٹیسٹ کیس لیا ہے، مظلوم کے ساتھ ہیں، ملوث لوگوں کو کٹہرے میں لائیں گے۔ چیف جسٹس بلوچستان ہائی کورٹ نے غیرت کے نام پر دوہرے قتل کا نوٹس لے لیا۔ ایڈیشنل چیف سیکرٹری داخلہ IG پولیس کل طلب۔ اعلامیے میں کہا چیف جسٹس روزی خان بڑیچ نے مارگریٹ ڈیگاری میں خاتون اور مرد کے قتل کی خبروں اور ویڈیوز پر نوٹس لیا۔ جوڈیشل مجسٹریٹ کا خاتون کی قبر کشائی کا حکم، ٹیم قبر کشائی کے لیے پہنچ گئی۔ مقدمے میں نامزد سردار شیرباز صادق زئی کو انسداد دہشت گردی عدالت نے جسمانی ریمانڈ پر دے دیا۔ مقدمے میں سردار شیرباز صادق زئی سمیت 11 ملزمان گرفتار ہیں۔ شاہ وزیر اور جلال سمیت 15 افراد نامزد۔ FIR کے مطابق ملزمان جوڑے کو قتل کرنے سے پہلے سردار شیرباز خان کے پاس لے کر گئے، جس نے دونوں کے قتل کا حکم دیا۔ پارلیمانی سیکرٹری برائے انسانی حقوق سگبا صادق نے بھی دوہرے قتل کا نوٹس لے لیا۔ خیبر پختونخوا میں سینٹ کی 11 نشستوں پر الیکشن نتائج کا انتظار۔ تمام 145 ارکان نے حق رائے دہی استعمال کیا۔ ووٹوں کی گنتی جاری۔ ایوان میں حکومتی ارکان کی تعداد 92 اور اپوزیشن کی 53 ہے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور اپوزیشن لیڈر ڈاکٹر عباد کی دن بھر ارکان سے ملاقاتیں۔ سینٹ الیکشن کے دوران ہارس ٹریڈنگ سے بچنے کے لیے حکومت اور اپوزیشن نے 6 اور 5 نشستوں کا فارمولا طے کیا۔ PTI کے 5 میں سے 4 کورنگ امیدوار پولنگ سے پہلے دستبردار۔ خرم ذیشان کا دستبردار ہونے سے انکار۔ آزاد امیدوار قاضی وقار بھی دستبردار ہوئے۔ نتائج کے بعد پتہ چلے گا فارمولا ٹھیک رہا یا نہیں، ابھی کچھ نہیں کہہ سکتا، رزلٹ کے بعد تبصرے ہوں گے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور کی میڈیا سے گفتگو۔ اپوزیشن کو 5 سیٹیں ملنے کا یقین۔ پیپلز پارٹی کے پارلیمانی لیڈر احمد کریم کنڈی کہتے ہیں فارمولے کے مطابق 5 سیٹیں ملیں گی۔ پنجاب میں سینٹ کی ایک نشست پر انتخاب، غیر حتمی غیر سرکاری نتیجے کے مطابق نون لیگ کے حافظ عبدالکریم 243 ووٹ لے کر کامیاب۔ PTI کی امیدوار کو 99 ووٹ ملے، 3 ووٹ مسترد ہوئے۔ وزیر اعلیٰ اور اسپیکر KP اسمبلی نے مخصوص نشستوں پر ارکان کی گورنر ہاؤس میں حلف برداری پشاور ہائی کورٹ میں چیلنج کر دی۔ درخواست میں وفاقی حکومت، رجسٹرار ہائی کورٹ، گورنر، الیکشن کمیشن اور دیگر کو فریق بنایا گیا۔ موقف اپنایا۔ اسپیکر KP اسمبلی نے ارکان سے حلف لینے سے انکار نہیں کیا۔ اسمبلی اجلاس شروع ہوا تو کوورم کی نشاندہی پر اسپیکر نے اجلاس 24 جولائی تک ملتوی کیا۔ گورنر ہاؤس میں حلف ماورائے آئین ہے۔ آئین کا آرٹیکل 65 ارکان اسمبلی سے حلف اسمبلی ہاؤس میں لینے کا کہتا ہے۔ کوئی ڈیل نہیں ہوئی، یہ کہنا کہ معاملات طے پا گئے غلط اور بے بنیاد ہے۔ تحریک انصاف کے سیکریٹری جنرل سلمان اکرم راجہ کا کہنا ہے 26 ارکان کی نااہلی کا معاملہ منطقی انجام کو پہنچا، ممبران کسی دباؤ کے تحت احتجاج کرنا بند نہیں کریں گے۔ اسلحہ اور شراب برآمدگی کیس میں وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور کے وارنٹ جاری۔ اسلام آباد کی سیشن کورٹ کا علی امین گنڈاپور کو گرفتار کر کے پیش کرنے کا حکم، بیان ریکارڈ کرنے کے لیے کل آخری موقع۔ اسلام آباد میں سیکٹر F6 سے ملحق سید پور ولیج کے برساتی نالے میں طغیانی ریلا گاڑی بہا کر لے گیا۔ نالا لئی میں بھی پانی کی سطح بلند ہونے لگی۔ مونسون کا نیا سپیل۔ اسلام آباد، راولپنڈی اور گرد و نواح میں بادل برس پڑے، موسم خوشگوار ہو گیا۔ محکمہ موسمیات کی 25 جولائی تک بارش کی پیش گوئی۔ طبی آلات کی لائسنسنگ اور رجسٹریشن کے ڈیجیٹل نظام کا افتتاح۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے خطاب میں کہا
वजारत सेहत में डिजिटाइजेशन का अमल बहुत अच्छा है, वो दिन जल्द आएगा जो पाकिस्तान की तकदीर बदलेगी। पंजाब में मुफ्त दवाएं देने के लिए बैरून मुल्क सैंपल भिजवाया तो 60% जाली थी। मुस्तफा कमाल ने जैसे मेयर कराची बनकर मेहनत की वैसे ही आज कर रहे हैं। वजीर सेहत मुस्तफा कमाल कहते हैं अवाम की सहूलत और निजाम की बेहतरी के लिए कोशिशां हैं। 3 माह बाद हर मोबाइल में QR कोड होगा जिससे पता चल जाएगा दवाई असली है या जाली। चीनी क्यों पहले बरामद और फिर दरामद होती है? कौमी असम्बली की कायमा कमेटी तिजारत ने चीनी स्कैंडल की तहकीकात के लिए आतिफ खान की जेर सदारत कमेटी कायम कर दी। कायमा कमेटी के चेयरमैन जावेद हनीफ ने कहा कमेटी 15 रोज में अपनी तहकीकात मुकम्मल करे, मालूम किया जाए बरामद और दरामद में क्या गठजोड़ है। कमेटी इस बात की तहकीकात करे कि कौन लोग मुलव्विस और फायदा उठाने वाले हैं। आतिफ खान ने कहा इस चीज की भी तहकीकात की जाए कि कितने शुगर मिल्स वाले हुकूमत और सियासत में हैं। बांग्लादेश में फौजी तैयारा कॉलेज पर गिरकर तबाह, तलबा समेत 19 अफराद जान से गए, 50 से ज्यादा जख्मी। बांग्लादेशी एयरफोर्स का तरबियती तैयारा F-7 ढाका के अटारा इलाका में कॉलेज की उस इमारत से टकरा गया जो प्ले ग्रुप के बच्चों की क्लासेस के लिए इस्तेमाल होती है। तैयारा गिरते ही इमारत में आग भड़क उठी, तलबा पनाह की तलाश में भागते रहे। तैयारा छुट्टी के वक्त गिरा, कैंपस में तलबा की बड़ी तादाद मौजूद थी। वजीर खारजा इसाक डार सरकारी दौरे पर न्यूयॉर्क पहुंच गए। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है वजीर खारजा न्यूयॉर्क और वाशिंगटन में अहम मुलाकातें करेंगे। UN सलामती काउंसिल में पाकिस्तान की सदारत के तहत आला सतह इजलासों की क़यादत करेंगे। 2 रियासती हल से मुताल्लिक बैनुल अक़वामी कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे। 2 रियासती हल कॉन्फ्रेंस सऊदी अरब और फ्रांस की मेजबानी में होगी। ऐवान सदर में निशान इम्तियाज मिलिट्री देने की तकरीब। सदर आसिफ अली जरदारी ने चीफ ऑफ रॉयल सऊदी नेवल फोर्सेस स्टाफ वाइस एडमिरल मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान को निशान इम्तियाज मिलिट्री से नवाजा। तकरीब में वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ, सऊदी अरब के सफीर नवाफ बिन अल मालिकी, पाक बहरिया के सरबराह एडमिरल नवीद अशरफ भी मौजूद थे। गैर कानूनी इमिग्रेशन में मुलव्वस माफिया से आहनी हाथों से निपटा जाए, बेरहमाना क्रैकडाउन और जीरो टॉलरेंस पॉलिसी अपनाई जाए। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की FIA हेडक्वार्टर में आला सतह इजलास में गुफ्तगू। कहा शहरियों की सहूलत के लिए एयरपोर्ट पर इमिग्रेशन अमल को आसान बनाया जाए। वजीर दाखिला ने FIA के लिए फौरी जदीद टेक्नोलॉजी, मतलूबा हथियारों की मंजूरी दे दी। मोहसिन नकवी ने FIA के शहदा की यादगार पर हाजिरी भी दी। अमरीका में कैद आफिया सदीकी की वतन वापसी का केस। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का वफाकी हुकूमत को तौहीन अदालत का नोटिस, 2 हफ्ते में जवाब जमा कराने का हुक्म। अदालत ने तहरीरी हुक्म में कहा वफाकी हुकूमत ने अदालती हुक्म के बावजूद वजूहात जमा नहीं कराई। अदालत के पास तौहीन अदालत नोटिस जारी करने के सिवा कोई ऑप्शन नहीं बचा। जस्टिस सरदार एजाज इसहाक खान ने रिमार्क्स दिए हमने इंसाफ के सतूनों पर एक के बाद एक हमला देखा। इन हमलों ने इंसाफ के निजाम को बार बार जख्मी किया, इसे तकरीबन आखिरी सांसों तक पहुंचा दिया। लोग कहते हैं यहां से इंसाफ नहीं मिलता। 100 केस रोजाना सुनते हैं। इस तरह रेगुलर बेंचेस में भी केसेस नहीं चलते। इसके बावजूद लोग समझते हैं उनके साथ इंसाफ नहीं हो रहा। जस्टिस जुल्फिकार सांघी के रिमार्क्स, शहरी को लाहौर से कराची की बजाय जद्दा ले जाने के केस में निजी एयरलाइन और FIA को नोटिस। सिंध हाई कोर्ट ने 1 हफ्ते में जवाब तलब कर लिया। सिंध हुकूमत का इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर्स ऑफ पाकिस्तान फेयर के लिए सहूलतों की फराहमी का ऐलान। सीनियर वजीर शर्जील मेमन कहते हैं सिंध हुकूमत मुआशी तरक्की के लिए मुस्बत इकदाम की मुकम्मल हिमायत करती है। तवानाई के शोबे में इनकलाबी इकदाम किए गए हैं। मुल्क की सबसे सस्ती बिजली नौरियाबाद विंड पावर प्रोजेक्ट से पैदा की जा रही है। सिंध हुकूमत सनतों कारोबारी बरादरी को हर मुमकिन सहूलतें देने के लिए पुरआज़्म है।
कराची में मनशियात भरी पड़ी है। तालीमी इदारों में मनशियात फरोख्त हो रही है। फ्लाई ओवर के नीचे मनशियात के आदी सो रहे होते हैं। मुलजमान पकड़े जाते हैं तो रिकवरी 50 ग्राम होती है। सप्लायर को पकड़ते हैं तो रिकवरी 500 ग्राम। सिंध हाई कोर्ट के मनशियात के मुकदमात के केस में रिमार्क्स। एडिशनल आईजी कराची जावेद ओढू ने कहा, मनशियात फरोश सिंडिकेट में काम करते हैं, गिरफ्तारी के बावजूद भी फरोख्त नहीं रुकती। कराची की मसरूफ तरीन सड़क शारा फैसल पर वाक़या नाथा खान पुल का एक ट्रैक फिर टूट गया। अंदरून शहर से एयरपोर्ट, मलीर, कैदाबाद, गुलशन हदीद जाने वाले शहरी ट्रैफिक जाम में फंसने लगे। कराची खारा दर में मखदूश करार देकर खाली कराई गई 5 मंजिला इमारत के मकीनों ने सिंध हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। मुअक्कफ अपनाया, एसबीसीए से कोई नोटिस नहीं मिला, इमारत का कोई सर्वे नहीं किया गया। अदालत ने एसपीसीए के जोनल डायरेक्टर को रिकॉर्ड के साथ तलब कर लिया। आईएसपीआर समर इंटर्नशिप कामयाबी से जारी। 150 से ज्यादा जामियात और दीगर तालीमी इदारों के 6,500 तलबा की शिरकत। तलबा का कहना है, हमें अपनी फौज से कोई जुदा नहीं कर सकता, हमारी फौज हमारा फख्र है। डीजी आईएसपीआर लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने तलबा से खुसूसी गुफ्तगू की। सेंटास मुआहिदा मुअत्तल करने वाले भारत पर चीन ने वाटर बम गिरा दिया। चीनी वजीर आजम ने तिब्बत में यर्लिंग सिम्पोडियम का संगे बुनियाद रख दिया, जिसकी तामीर पर 168 अरब डॉलर लागत आएगी। डाउन स्ट्रीम में तिब्बत से पानी दरियाए ब्रह्मपुत्र में तब्दील होकर भारत जाता है। वाशिंगटन में भारतीय सफारत खाना दहशतगर्द सरगर्मियों का गढ़ है। 2047 तक भारत के टुकड़े हो जाएंगे, गुरपतवंत सिंह पन्नू का कहना है। 17 अगस्त को वाशिंगटन में आजाद खालिस्तान के लिए रेफरेंडम होगा। भारतीय यौम आजादी पर वाशिंगटन में भारतीय सफारत खाने के बाहर एहतजाज और तिरंगा जलाने का ऐलान कर दिया। गजा में सहूनी फोर्सेस के हमलों में एक दिन में मजीद 120 फलस्तीनी शहीद, दर्जनों जख्मी। काबिज फौज ने शुमाली गजा में इमदाद के मुंतजर फलस्तीनियों पर कई पाउंड वजनी बम बरसाए, टैंकों से अंधाधुंध गोलियां चलाई, 92 अफराद शहीद हो गए। खान यूनुस में भी इसराइली हमले में 7 अफराद शहीद हुए, 5 साल का बच्चा भी शामिल। गजा का मुहासरा बदस्तूर जारी, इमदादी ट्रकों को दाखिले की इजाजत नहीं। फलस्तीनी वजारत सेहत का कहना है, गुज़श्ता 24 घंटों में गजा में भूख से 18 अफराद ने दम तोड़ दिया। ईरान का 3 यूरोपीय मुल्कों से जौहरी मुज़ाकरात दोबारा शुरू करने का ऐलान। मेजबान तुर्की करेगा। तर्जुमान ईरानी वजारत खारजा के मुताबिक बरतानिया, जर्मनी और फ्रांस के साथ मुज़ाकरात आइंदा जुमे से इस्तांबुल में शुरू होंगे। 4 मुल्कों के नायब वज़ीर खारजा शरीक होंगे। ईरानी वज़ीर खारजा अब्बास इराक़ची का कहना है, ईरान पुराने मुआहदे पर वापस नहीं जाएगा। तीनों यूरोपीय मुल्कों के पास 2015 का मुआहदा नाफिज करने के लिए कानूनी, सियासी और अखलाकी जवाज नहीं है। महकमा जंगली हयात रावलपिंडी ने चक बेली रोड से शेर तहवील में ले लिया। शेर का मालिक फखर अब्बास लाइसेंस पेश न कर सका। गैर कानूनी तौर पर शेर रखने पर मालिक को 60,000 रुपए जुर्माना कर दिया गया। और क्रिकेटर्स को एम्बेसडर होना चाहिए, मुल्क की एम्बैरेसमेंट नहीं बनना चाहिए। भारत का लेजेंड्स लीग में पाकिस्तान के खिलाफ न खेलने पर शाहिद आफरीदी का रद्द-ए-अमल। कहा, एक अंडा ऐसा जरूर होता है जिसकी वजह से सब खराब हो जाता है। भारत पाकिस्तान के खिलाफ नहीं खेलना चाहता था तो यहां आने से पहले इनकार करना चाहिए था।